Good morning to all the students. Today's topic is sources of electrical power. What are the various sources of electrical power and what are the various types of electrical sources? So first of all, we should know what is the basic purpose of sources. The basic purpose of sources is to supply the power to a load. We have to give the supply to the load so that we can get the output. किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ की आउटपुट लेने के लिए आपको इनपुट सप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी सर्किट के आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो सोर्सेज होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी आइदर एसी और डीसी। या तो आप सोर्स दे सकते हो एसी या फिर डीसी। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी स्टैंड फॉर द डायरेक्ट करंट। एसी स्टैंड फॉर द alternating current and DC stand for the direct current. Okay, AC stand for alternating current, in which the quantity changes, any quantity that changes in magnitude and directions, that is known as the AC. Okay, and AC is always represented in the form of sine wave, sinusoidal waves. You know that about sine wave or sinusoidal variations wave. And DC stand for the direct current, and any quantity that is steady or constant is known as the direct current, and it is unidirectional in nature. Unidirectional in nature means it has unidirectional nature. Uni means one side. There is one more term is which is known as the bidirectional. Bidirectional means both sides. यूनिडायरेक्शनल नेचर होता है आपका डीसी का, ठीक है, विच इज़ नोन एज द डायरेक्ट करंट एंड इट इज़ कांस्टेंट इन नेचर्स. कांस्टेंट और स्टडी सेम थिंग इज देयर, ठीक है. सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डीसी सोर्सेज. सो डीसी सोर्सेज एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस डायरेक्ट वोल्टेज आउटपुट कंटिन्यूसली इज कॉल्ड एज द डीसी सोर्स. जो आपको डायरेक्ट डीसी आउटपुट देता है, आउटपुट वोल्टेज देता है, दैट इज नोन एज द डीसी सोर्स. और वेरियस एग्जांपल ऑफ द डीसी सोर्स इज बैटरी इज देयर, जनरेटर इज देयर, देयर आर अदर थिंग्स. regulated power supply is one of the another example of the DC sources. Okay, so there is a symbol of DC source. DC source you can represent, there is, this is your positive terminal and this is your negative terminal. This is the source in the form of DC. okay, जो आपका this is long one, this is always a positive, और जो आपका छोटा टर्मिनल होता है that is known as the negative terminal. okay, here we get the output voltage. These are known as the terminals जहाँ पे आप आउटपुट ऑब्टेन करते हैं. okay, next is AC sources. AC stand for the alternating current. Any devices that produces alternating voltage continuously is called as the AC source. जो आपको AC output देता है continuously, that is known as the AC sources. Various AC sources are the alternators, oscillators, signal generator. Oscillator, signal generator is same thing, which will generate the AC voltage. okay, those now the symbol of AC sources you can see here. AC sources, symbol of AC sources is, this is the symbol of AC sources. I have already explained earlier that AC is denoted in the sinusoidal form, sinusoidal wave. okay, this is the battery. There is one more thing, DC generator is there. okay, this is DC generator. DC generator, how we represent is DC generator, that is with the internal resistance. This is the DC generator. okay, here is we don't have sine wave inside this one. This is the DC. okay, this is positive terminal and this is the negative terminal. There is a difference between AC source and the DC source. If you represent the generators, DC generator are mostly used for the high power.
जहाँ आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर्स, एंड बैटरीज आर यूज फॉर द स्मॉलर पावर जनरेशंस. So there is a big difference, just make it sure. If you are representing this one, this is the DC generator source, but there is no sine wave inside the this symbol, this circle, okay, and this is the AC source. Okay, now we will talk about that DC source with the load. Okay, या DC source on a load या with the source. ठीक है, जब हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, लोड इज टेकिंग एट द आउटपुट टर्मिनल्स. ठीक है, यू कैन सी हेयर. ओके, सो वी आर टेकिंग ए सर्किट डायग्राम, डीसी सोर्स विद ए लोड ऑन ए लोड, सेम थिंग. ठीक, ओके, डीसी सोर्स विद ए लोड, here we will supply the DC source, that is positive negative battery. Okay, then there is internal resistance. Ri stand for the internal resistance. Resistance, as all of you know, that it is used to oppose the electric current. ठीक है, फ्लो ऑफ द करंट को अपोज करने के लिए यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस. ठीक है, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस. यू कैन यूज़ इट हेयर ऑल्सो, सेम थिंग, सीरीज में कनेक्ट करेंगे. देन देर इज़ ए लोड रेजिस्टेंस एट द आउटपुट टर्मिनल. RL स्टैंड फॉर द load resistance, and these are known as the terminals, output terminal, जहाँ पे हम output check करते हैं. ठीक है, so we will have the equation. We know that Ohm's law says that voltage that is equal to IR, V is equal to IR. Ohm's law सबने पढ़ा होगा. ठीक है, from this equation we will get the, तो आपके पास लोड करंट क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज द IL, load current. So we have to calculate the load current. What is this? Here I is equal to V upon R, where voltage is what? E, induced EMF आप E दे रहे हैं, divided upon the R. R क्या है आपके पास? R आपके पास सीरीज में है, क्या है आपके पास? RI plus RL. So it is RI plus RL. So load current is, लोड करंट का फॉर्मूला क्या बन गया? IL is equal to E upon RI plus RL. Okay, so next is terminal voltage. Terminal voltage means here V, इस आउटपुट टर्मिनल में आपकी क्या वोल्टेज आ रही है? आपको पता है V is equal to IR. ठीक है, V is equal to IR. R आपका क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस कौन सा है? लोड रेजिस्टेंस. एक तो आपका ये बन गया. ठीक है, सेकेंड थिंग, टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगा आपके पास? यहाँ पे क्या आ रहा है, तो उसके लिए क्या आपके पास इनपुट क्या आ रही है? इनपुट वोल्टेज क्या आ रही है? दैट इज़ योर ई. इनपुट वोल्टेज इज ई माइनस यहाँ पे आपके वोल्टेज ड्रॉप. यहाँ आपके सपोज आपने 10 वोल्ट दी है, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहुँचने तक कितनी वोल्टेज रहेगी? है, कितना ड्रॉप हो रहा है, कितनी कम हो रही है वोल्टेज? दैट इज दिस वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ई माइनस यहाँ इसके अक्रॉस आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू IR. तो आपके पास I रेजिस्टेंस कौन सा है? इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज IRI. ओके, सो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज विच इज एट द आउटपुट एंड. सो इट इज क्लियर. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कितना हो रहा है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? जब आपने सप्लाई किया टोटल वोल्टेज में से यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ. अगर आपने 10 वोल्ट दिया है तो यहाँ पे अगर 3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया तो टोटल कितना बच गया? 7 वोल्ट. दैट इज द टोटल वोल्टेज रीच्ड एट द आउटपुट स्टेज. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज. ओके, एंड वन मोर फॉर्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू IRL. यू नो दैट V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, वेयर I का I आपने यहाँ से निकाल दिया है. ठीक है, IL, दिस इज ओके. यू कैन कैलकुलेट दिस, यू कैन राइट इज IL RL. ठीक है, IL आपके पास क्या आ गया? दैट इज E अपॉन RI प्लस RL, और आपके पास ये RL है, दिस इज RL. ठीक है, I की वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दिया है यहाँ पे. ठीक है, देन यू विल गेट द इक्वेशन विच इज नोन एज V इज इक्वल टू E अपॉन, ठीक है, RL प्लस RL, RI प्लस RL. ठीक है, दिस इज 1 RL अपॉन RL, RI अपॉन RL क्या हो गया? 1 हो गया. RL अपॉन RL कट गया, दैट इज 1 प्लस RI अपॉन RL. E इज इक्वल टू 1 प्लस RI अपॉन RL. दिस इज द
terminal voltage at the output end. Okay, so same way we can calculate the AC source voltage with the load, या on a load या with the load, same thing. ठीक है, इन केस ऑफ AC सोर्सेज जो आपके पास रेजिस्टेंस होता है दैट इज रिप्लेस्ड विद द इम्पिडेंस. ठीक है, इम्पिडेंस इज सेम एज द रेजिस्टेंस. जो आपका रेजिस्टेंस का फंक्शन होता है वही इम्पिडेंस का ऑलमोस्ट सेम फंक्शन होता है, बट इट इज़ यूज टू अपोज द करंट इन द AC सोर्सेज. आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज द करंट, फ्लो ऑफ द करंट. ठीक है, ये भी अपोज द फ्लो ऑफ द करंट करता है, बट इनसाइड द AC सोर्सेज में. इन AC सोर्सेज में आपके पास जो अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को, उसको कहते हैं हम इम्पिडेंस. ठीक है, तो इंटरनल इम्पिडेंस दैट इज डिनोटेड बाई ZI. इम्पिडेंस को डिनोट करते हैं हम Z से. ओके, इट इज ZI. ओके, सो AC सोर्स विद ए लोड. ठीक है, आपको पता है AC सोर्स, दिस इज योर AC सोर्स, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, एंड हेयर वी यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस. जो आपने यहाँ पे RI किया था, यहाँ पे आपने ZI किया है. इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस करेंगे, देन करंट फ्लो कर रहा है, देन देयर इज ए लोड रेजिस्टेंस विच इज लोड इम्पिडेंस इज रिप्लेस्ड हेयर. ठीक है, विच इज नोन एज द ZL. सो व्हाट विल द वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल. तो हम सेम प्रोसेस है. ठीक है, लोड करंट कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज IL. IL इज इक्वल टू अगेन फ्रॉम द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. सेम प्रोसेस है, I इज इक्वल टू V अपॉन R. V के आपके पास E. ठीक है, दैट इज अपॉन R के आपके पास टोटल. टोटल क्या है, दिस इज ZI प्लस ZL. सीरीज में लगा हुआ है, दैट ZI प्लस ZL. दिस इज इक्वेशन नंबर, हेयर वी गेट द, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट द लोड करंट by this formula, and then you have to calculate the voltage, terminal voltage here. V कितना होगा, सेम जैसे आपने पहले कैलकुलेट किया था. अब यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना था, E माइनस आपका यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस हुआ इसके अक्रॉस, दैट इज ZI. ठीक है ना. सो इट इज ऑल्सो calculated by the formula that is V is equal to ZL. V is equal to IR. R is replaced with the impedance Z. तो आपका ये फॉर्मूला बन गया है to calculate the terminal voltage. Okay, thank you so much students.